Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes. So today we are again going to learn a very interesting and important lesson of class 12, that is nothing but the continuation of P block. Okay, so as always this is also a very important lesson. So what you need to do, you need to take a pen and paper and write down the important points that we will learn here. Okay, so what will be our topic of discussion? Our topic of discussion will be P block, and we listed basically nitrogen family. Okay, and they are also known as nicogens. So let's start today's lessons. So what are the elements present in group 15? That is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay, so what is the atomic number of nitrogen? Atomic number of nitrogen is 7. And what is the atomic number of phosphorus? 7 plus 8 it is 15. 15 plus 18 it is 33. 33 plus 18 it is what? 51. 51 plus 32 it is 83. Okay, so these are the elements present in this element. Therefore there is another element that is known as moscobium, that is a synthetic element. Okay, and so as it is discovered very shortly, so it is not going to discuss here. It is our out of coverage area. Okay, but we will learn nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Okay, so I think you know all nitrogen and phosphorus, these two are what? These two are non-metals. Yes, non-metals. And arsenic and antimony, these two are what? Metalloids. Okay, and last but not the least, this bismuth is a typical metal. Okay, or you can see it is a very poor metal. Why? Because its metallic character is not so good. That means all the metals are generally what? Good conductor of electricity, good conductor of heat. But you need to remember, this bismuth is the only metal that is a very poor conductor of heat and electricity. Okay, now you can check the electronic configuration. See, if we write the electronic configuration of nitrogen, you will get 2s2 2p3, phosphorus 3s2 3p3, arsenic 4s2 4p3, एंटीमोनी का क्या होगा 5s2 5p3 एंड बिस्मथ का 6s2 6p3. तो व्हाट विल बी द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 15 group? The common electronic configuration will be NS2 NP3. Okay, so this indicates how many valence electron they have. Number of valence electron is 5. Yes, their number of valence electron is 5. Okay, so these were all about the basic introduction to this 15 group. And there is, you can see one interesting thing. If we write, इसमें S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, Px Py and this is what? Pz. You can see the S is fully filled and the P is half filled. That means nitrogen family have a very good or stable electronic configuration. इस stable electronic configuration के वजह से इन लोगों का जो ionization enthalpy है, I think you know what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is nothing but the amount of energy needed to remove one electron from an isolated gaseous atom. अगर यहाँ से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, that you need to apply a large amount of heat or energy. Why? Because this is a stable configuration. Why stable configuration? We know if it is half fill or full fill, that type of configuration is known as a very stable configuration. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है why 15 group element have a very high ionization enthalpy? Because of their half fill electronic configuration, and which is a very stable configuration. Okay, so before I approach
एक बात बोलना चाहूँगा, तुम्हें इसका नोट्स के लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ओके इन द फॉर्म ऑफ फोटो कॉपीज। आई विल सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर जिस चीज़ को नहीं मिल रहा है ओके, यू कैन डायरेक्टली मैसेज में। और एक बात, जिन लोगों ने अभी तक ये प्रीवियस लेसन नहीं देखा, प्लीज़ प्रीवियस लेसन देख के आओ, तो अभी तुम्हें इस लेसन का कंटिन्यूएशन में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर से देखते हैं। लिख लो सब ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑकरेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स। ऑकरेंस मतलब नेचर में इन एलिमेंट्स को कहाँ मतलब पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट नाइट्रोजन। यस, रिमेंबर, आई थिंक यू नो, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इसके अलावा भी नाइट्रोजन को इन द अर्थ क्रस्ट, यू नो अर्थ क्रस्ट में एज ए सोडियम नाइट्रेट एंड एज ए पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। क्या क्या, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। यू मे आस्क इन योर एग्जाम व्हाट इज द मिनरल ऑफ nitrogen that is found in the earth crust, that will be what, sodium nitrate and potassium nitrate. इसके अलावा भी नाइट्रोजन इज ए वेरी abundant और वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ मिला जाता है, प्रोटीन कैन बी फाइंड इन द ऑल द एनिमल्स, जितना भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, जैसे कि हम लोग का बॉडी इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इसमें क्या है, प्रोटीन भी है कि नहीं है। तो उस प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड क्या है, नाइट्रोजन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आई थिंक यू नो, यू हैव हर्ड अबाउट व्हाट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। यस, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप, उन लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा जो इंसेक्ट होता है, दे ट्रैप देम ओके एंड ईट देम। व्हाई दे ट्रैप दैट इंसेक्ट एंड ईट देम, because that kind of plants are lacking of nitrogen। उन लोगों को नाइट्रोजन चाहिए उन लोगों का इंटरनल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर लेते हैं और उन लोगों को डाइजेस्ट करके वहाँ से नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग और भी सीखेंगे आगे अबाउट नाइट्रोजन। तो ये था नाइट्रोजन का ऑकरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, देखो जितना भी रॉक्स है, रॉक्स, ठीक है, और रॉक्स का पत्थर है, पत्थर का जितना भी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है वो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जितना भी मिनरल्स है, दे आर कम्स अंडर वन फैमिली, और इस फैमिली का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। द नेम ऑफ द फैमिली इज एपाटाइट, एपाटाइट्स। तो यू मे आस्क इन योर एग्जाम व्हाट इज एपाटाइट्स। एपाटाइट इज नथिंग बट द मिनरल्स फैमिली ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो यू मे आल्सो आस्क व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस एपाटाइट। इट इज वेरी जनरली इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। तो व्हाट इज दिस, C9, C कैल्शियम 9, PO4 6 CaX2। ठीक है, ये है एपाटाइट का जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड OH नेगेटिव। तो एक कॉमन, वेरी कॉमन एपाटाइट का एग्जाम्पल है फ्लोरो एपाटाइट। फ्लोरो एपाटाइट, एपाटाइट। तो व्हाट इज फ्लोरो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोरो एपाटाइट, ऑब्वियसली Ca9 PO4 6 XaF2। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरो एपाटाइट। तो आई थिंक तुम लोग क्लोरो एपाटाइट का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। यस, है कि नहीं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अबाउट दिस नाइट्रेट एंड दिस एपाटाइट। और इसके अलावा भी और क्या क्या एलिमेंट है, ये हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और है आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। ओके, तो इन तीनों को इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, मतलब इन लोगों का सल्फाइड और सल्फाइड के साथ क्या कंबाइन होके आर्कस में मिला जाता है। ठीक है, बट वो हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट
व्हाट इज आवर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अबाउट दिस नाइट्रोजन एंड दिस फॉस्फोरस। और तो ये था अबाउट द ऑकरेंस। तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देख लिया। व्हाट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, NS2Np3। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का ट्रेंड वही नॉर्मल है, ऊपर से नीचे तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ड्यू टू व्हाट, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, बेटर देन मी। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे एलोट्रॉप्स, ठीक है, एलोट्रॉप्स। तो जस्ट याद रखना है, नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितना भी एलिमेंट्स है ग्रुप 15 का, सब लोग क्या कर सकते हैं, एलोट्रॉप्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद हम लोग को क्या याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बोल दिया, दे हैव ए वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इवन ग्रुप 14, 15 एंड 16। देखो, वी नो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period ionization enthalpy increases, but very interestingly ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS2Np3, और इसका क्या हुआ, NS2Np4, ठीक है। और इसका क्या है 14 ग्रुप का NS2Np2। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्टेबल कन्फिगरेशन बिकॉज P3 मतलब व्हाट, हाफ फिल। P4 मतलब क्या है, देखो देख लो पहले, 1 2 3, ये हो गया 4, मतलब दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज नॉट ए स्टेबल कन्फिगरेशन। इसलिए 16 ग्रुप का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 16 ग्रुप से 15 ग्रुप का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। आई थिंक मैंने ये आप लोगों को क्लास 11 में ही सिखा के आया। और ऑब्वियसली 14 से 15 ग्रुप का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो कि हम लोग पहले भी पढ़ के आया, देख ऊपर से नीचे तक, मतलब नाइट्रोजन से किसका, बिस्मथ तक, इन लोगों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते रहेगा, और जो कि हम लोग पहले भी पढ़ के आया, ठीक है। तो अभी हम लोग इन लोगों का थोड़ा कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या क्या था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियन, बिस्मथ। देखो, ये नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, गैस। और फॉस्फोरस क्या होगा, एक वैक्सी सॉलिड, ठीक है, वैक्सी सॉलिड। हम लोग नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो आर्सेनिक, एंटीमोनी है, इन लोगों के बारे में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा इन सेमीकंडक्टर। ओके, तो दिस टू आर ऑल्सो सॉलिड्स एंड दिस इज ऑल्सो सॉलिड, मतलब ये तीनों क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ये गैस, ये वैक्सी सॉलिड, और बाकी तीनों क्या होगा, ये तीनों सॉलिड ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो अननेसेसरी थिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, जो कभी नीट और जेईई में कभी पूछा भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखो, कॉमन oxidation state of group 15. So what is the common oxidation state of group 15? I think you know it very well. What is the common oxidation state? -3, +3 and +5. तो सर आपको ये कैसे पता चला, ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपने याद कर लिया? नहीं, मैंने याद नहीं किया, जस्ट इसको याद रखना है, NS2Np3। तो देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो सपोज नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का नेक्स्ट नोबेल गैस क्या है, नाइट्रोजन का नेक्स्ट नोबेल गैस है नियॉन, ठीक है। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट विल टेक 3 मोर इलेक्ट्रॉन। जब 3 मोर इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, अगर कोई बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दैट इज ऑब्वियसली हाउ मेनी चार्ज विल जनरेट इन नाइट्रोजन, कितना होगा, -3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -3, ठीक है। और इसके पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब
ऐसे सेकंड कैसे सेकंड है, मैं फिर से दिखाता हूँ। नाइट्रोजन का नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक नोबेल गैस है दैट इज व्हाट, नियॉन। और इसके पहले वाला जो क्या है, एक को क्या है, हीलियम। तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इट विल डोनेट दिस 3 इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दे विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसमें प्लस चार्ज जनरेट होगा। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं, तो एक्साइट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना उन लोगों का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये था नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 +3 एंड +5। लेकिन हमने पहले वाला वीडियो में बोला जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी है, ठीक है। -3 मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है। ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी क्या होगा, डिक्रीज। ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, ठीक है। शोइंग टेंडेंसी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्यों होगा, बिकॉज जितना साइज ज़्यादा होगा और उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होते रहेगा। इसके वजह से दे विल नॉट इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, क्यों नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, क्यों मेटल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी ज़्यादा है या डोनेट टेंडेंसी ज़्यादा है, ऑब्वियसली डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। तो वी नो फ्रॉम इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते रहेगा तो उन लोगों का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, कम होते जाएगा। सो देयर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा, ठीक। नेक्स्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर अभी भी किसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट में कोई डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो +3 का क्या होता है, इंक्रीज होता है, रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और +5 का क्या होता है, डिक्रीज होता है, शोइंग द टेंडेंसी। मतलब ये भी क्यों रीजन है, इन दोनों का रीजन एक ही है, दैट इज व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, मोटा मोटा करके बोलने से ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये NH2 इलेक्ट्रॉन दे बिहेव लाइक ए इनर्ट गैस, इन लोग इनर्ट गैस जैसे बिहेव करता है। सो वी कैन नॉट एक्साइट, जैसे यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पे डाला ना, तो ये एक्साइटेशन वहाँ पे नहीं होता है। सो दे कैन ओनली एबल टू use these NP electrons, okay। so due to this inertness of electron, जब भी हम लोग इन ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं उन लोगों का ये इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी कम हो जाता है। दिस मीन्स दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे हैव लेस टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इजीली कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन। और सबसे कम कौन दिखाएगा, जो नीचे में होता है कौन, बिस्मथ, ठीक है। तो गाइस दिस वेर ऑल अबाउट व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग अभी देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इतना पावर है कि वो मतलब जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो सारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले, आई थिंक यू नो इट व्हाट, एमोनिया, ठीक है, इसका बोलते हैं एमोनिया। नाम नहीं पता होने से पूछना। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोजन। तुम लोग क्या करो, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और देखो क्या मजा है। इसमें है NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमाइन। नेक्स्ट है N2, और बाकी तो पता है सबको, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5,
ठीक है, क्या क्या है, NH3 N2 H4, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल अमाइन, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन, दिस इज व्हाट, नाइट्रस ऑक्साइड, और दिस इज व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हियर, इट इज -3, दिस इज -2, दिस इज व्हाट, -1. अकेले रहने से क्या होता है, 0, दिस इज व्हाट, +1, +2, +3, +4 एंड दिस व्हाट, +5. तो यू कैन सी हियर, देखो नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है, सारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं, शो कर सकता है. ठीक है, तो इसमें एक बहुत मज़ेदार बात क्या है, जब भी एक एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन नंबर. और जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाट, दे उन लोगों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, दैट वी हैव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, हमेशा याद रखना है से -3 ऑक्सीडेशन नंबर में नाइट्रोजन हमेशा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा. क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि एट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट all the elements have a strong tendency to increase the oxidation number. और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑब्वियसली यू कैन से हियर नाइट्रोजन क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है. और जब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डिक्रीज इट ऑक्सीडेशन नंबर. और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, दैट विल बिहेव लाइक ए व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब 5 से अगर 4 में आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है. और जिसका रिडक्शन होता है, दैट विल ऑलवेज बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. This is not applicable for only for nitrogen, this is applicable for all. Okay, at highest oxidation number they behave like a oxidizing agent, at lowest oxidation number they behave like a reducing agent. But most interestingly and importantly, what about this? सर इन लोग क्या करेगा, बाकी तो ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट का पता चल गया, जब ये इंटरमीडिएट में रहेगा तब क्या करेगा. तो उसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद. उसके पहले ये सुन लो कि जब भी कोई एटम और एलिमेंट्स दे आर इन देयर इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब हाईएस्ट भी नहीं है लोएस्ट भी नहीं है, तो दे हैव 2 ऑप्शन. ठीक है, सपोज तुम बुर्ज खलीफा में गए हो और उसका मिडिल फ्लोर में हो, मतलब बुर्ज खलीफा में कितना स्टोर है, आई डोंट नो, आई थिंक 200 जैसे कोई भी है. तो तुम मिडिल में हो तो क्या कर सकते हो, यू कैन गो अप, यू कैन गो डाउन. लेकिन अगर तुम एक टॉप फ्लोर में हो तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू कैन गो डाउन. अगर कोई ग्राउंड फ्लोर में है उसके पास एक ही ऑप्शन है, दे कैन गो अप. ओके, तो सपोज दे आर इन द मिडिल फ्लोर, तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक एज वेल एज गो अप. मतलब इन लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही कर सकता है. और जब भी एक एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होता है एक साथ, दे आर नोन एज व्हाट, डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेटिंग एजेंट. ओके, तो दे विल बिहेव लाइक डिसप्रोपोर्शनेटिंग एजेंट और बाकी ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो हेडलाइन बना के लिखो, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ ग्रुप 15, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ ग्रुप 15. जैसे कि देखो NHNO2, ये क्या है, यस दिस इज व्हाट, नाइट्रस एसिड. तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार पूछता है. जब भी इसको हीट किया जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, तो दिस एसिड, देखो इसमें नाइट्रोजन क्या है, +3, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में है. तो जब भी ये इंटरमीडिएट स्टेट में होगा तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब HNO3 एंड प्लस इसके साथ साथ हम लोगों को क्या मिलेगा, वाटर एंड NO. So you can check here the oxidation number of nitrogen here is +5 and oxidation number of nitrogen is here +2. So you can check here
nitrogen is going from +3 to +5, that means oxidation number is increasing, that is oxidation. And here you can say +3 से क्या हो रहा है +2, that means it is reducing. ओके तो जब भी एक ही एलिमेंट का एक ही टाइम में एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है एक बार रिडक्शन हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो लिख लिया सबने, कैन आई राइट इट? ओके तो पॉज मार के लिख लो. तो नाउ वी कैन टेक अनदर रिएक्शन फॉर फॉस्फोरस. सी AH3PO3. This is also a very important acid. This is a weak acid. The name of the acid is phosphoric acid. And what is the oxidation number? +3. Again phosphorus is in intermediate oxidation state. तो जब भी हम लोग phosphorus को क्या करेंगे in aqueous solution डिकम्पोज करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू AH3PO4 एंड PH3 और फॉस्फिन देगा. हम लोग को क्या देगा? फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फिन. तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +5 और इसमें क्या है? -3. तो चेक करो एक बार क्या हुआ, +3 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, दैट इज ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे फॉस्फोरस क्या हो रहा है? +3 से -3 मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. तो देखा, जब भी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो दे विल डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब उन लोगों का क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेट होगा. तो ये दोनों रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसाम हाई सेकेंडरी बोर्ड में और CBSE का बोर्ड में भी ये काफ़ी बार पूछ चुका है और पूछते रहेगा ही. ठीक है, और नीट जे पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलो हम लोग अभी देखते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ व्हाट? मैक्सिमम कोवैलेंसी. तो राइट द हेडलाइन. व्हाट इज द हेडलाइन? मैक्सिमम कोवैलेंसी. तो व्हाट इज कोवैलेंसी? What is covalency? Covalency is nothing but number of covalent bond form. जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो what is the covalency? Covalency 1. Yes. अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा तो covalency कितना है? 2 है. और ऐसे भी कर सकते हो इसके साथ कितना कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4, मतलब इसका कोवेलेंसी कितना होगा? 4 ही होगा. तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट का कोवेलेंसी. ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड एट ए टाइम. यस, देयरफॉर द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज व्हाट? 4. तो आज देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? 1s2 2s2 2p3. तो इसका अगर आउटर मोस्ट देखेंगे हम लोग, क्या है इसमें? 2s है, मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन. इसके बाद क्या है? 2p 2px 2py और ये हो गया 2pz. सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो इसके पास 2d इलेक्ट्रॉन है क्या? 2d एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं ना. मतलब नाइट्रोजन डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. दे हैव ओनली, नाइट्रोजन के पास क्या क्या है? ओनली 1 एक s है एंड इसके पास 3p है, मतलब एक s और 1 2 3 p ऑर्बिटल है, मतलब इसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है. तो इसके वजह से नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट ऑक्टेट, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये एक्सपेंड करके यहाँ पे d में दे ही दे सकता है. लेकिन अगर ये हम लोग फॉस्फोरस के लिए देखेंगे, देखो फॉस्फोरस, तो अगर हम लोग फॉस्फोरस के लिए देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस? 3s2 3p3 3d0. मतलब ये 3d0 मैंने इसे लिख दिया क्योंकि 3d एग्जिस्ट करते कि नहीं करता है, दैट मीन्स इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है. तो ग्राउंड स्टेट में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस? एंड 3s2 और 3p3. ठीक है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट. लेकिन इसको हम लोग एक्साइट कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द 3d ऑर्बिटल. तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4 5. मतलब इसके पास बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता है? ये 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता है. ठीक है, लेकिन जैसे कि नाइट्रोजन के पास 3d और d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग ये 2s इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो
तो जिसके लिए नाइट्रोजन के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना ऑक्टेट को एक्सपांड करे, बट वो फॉस्फोरस के पास है। इसलिए फॉस्फोरस क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स इन लोगों ने PCl5 फॉर्म कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता था एग्जाम में, वाई PCl5 एग्जिस्ट एंड NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। NCl5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपना ऑक्टेट एक्सपांड करने के लिए कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, सो नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवेलेंसी ऑफ 5। बट फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, सो it is able to expand its octet, so it can form PCl5। ओके, तो समझ में आ गया। तो एग्जाम में और भी क्वेश्चन आएगा कि दो नाइट्रोजन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड एट ए टाइम, वाई? तो सबका आंसर एक ही होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन के साइज बहुत छोटा है, दैट मीन्स इसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है टू एक्सपेंड इट ऑक्टेट। तो क्वेश्चन आएगा कि सर नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम? तो नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, ये ऐसा करके 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को डायरेक्टली देके और किसी और के साथ शेयर करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा, 4, 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल मिला के कितना हो गया, 4। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, सी NH4+, इसका नाम क्या होता है, एमोनियम। ठीक है, एमोनियम मतलब नाइट्रोजन क्या करते हैं, 3 अदर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देता है। और इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को देके टोटल कितना बॉन्ड फॉर्म कर देगा, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो दैट मीन्स द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 only. So another question that is generally asked in the exam, that is what is the maximum covalency of nitrogen in N2O5? तो N2O5 में नाइट्रोजन का कोवेलेंसी क्या होता है? तो you can check here, see this is the structure of N2O5. okay, this is the structure of N2O5 and you check how many covalent bond is there around the nitrogen, 1 2 3 4. So the maximum covalency of nitrogen is here 4 only. नाइट्रोजन का कोवेलेंसी को भी 5 नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वेयर ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इसके और भी बहुत कुछ सीखना है और सीखने को बाकी है, लेकिन एज द लेंथ ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू सो हाई, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे। तो आपको अब पूरा पढ़ना है और NCERT बुक को रिवाइज करते रहना है। मोर ओवर यू कैन फॉलो रेफरेंस बुक फॉर योर प्रॉपर क्लियरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। और इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, डोंट हेजिटेट इन द कमेंट सेक्शन। मोर ओवर यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। ओके, तो टेक केयर, हैव ए गुड डे।